अली सर राइट साइड। अरे वाइट को मार सर लुक सेंटर। वापस यहाँ पे वीडियो यस सर। मैं स्माइल दे रहा था ठीक है आपके लिए लाइट रोलिंग। अली सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आईफा का जो वोटिंग होने वाला है सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी? हालांकि आप बताएंगे नहीं लेकिन आपके मुताबिक कौन सी मतलब फिल्में अच्छी लगी आपको 2016 की अगर बात करें तो? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ वो 2015 या 2016 क्योंकि वो हमेशा कैरी ओवर होता है बट आई थॉट we've had some great films here. I mean, from does Race count in this? Yeah. Yeah. So yeah, that's been one of my favorites. Pink and Naam Shabana, which are actually Taapsi's films. They've been very nice. You know, those were two films that I really enjoyed. Or yeah, I think it's been a great year of lineup. I'm looking forward to voting actually. And मेरी कोई फिल्म नहीं है इसमें so I'm just really excited and giving a full thumbs up and bucks to my friends and my co-actors and yeah I recently saw Badrinath. I thought that was a brilliant film. Dear Zindagi also, we've had a great run. I think काफ़ी there's been a big change in cinema also कि काफ़ी बहुत बड़ी फिल्में नहीं चली हैं एंड आई थिंक ग्रेट कंटेंट इज़ रियली वर्किंग ऑल्सो राइट नाउ विक्रमादित्य मोटवानी's film came and I haven't seen it yet. Raj's film which I congratulated them but I'm really looking forward to seeing it. I think वो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं शायद yeah with the film so yeah रिसेंटली आपकी पिक्चर वायरल हुई थी माइकल जैक्सन की डॉटर के साथ आपकी और ऋचा चड्ढा की तो कौन सा हॉलीवुड प्रोजेक्ट करने वाले हैं? ऋचा भी है क्या उसमें? I can't say much about it right now. बहुत ही early stages हैं. Yes, we did meet, and it was quite iconic क्योंकि Paris is she's really interested in India and it was funny क्योंकि उन लोग को उतना अंदाज़ा नहीं था जितना माइकल जैक्सन का कितना बड़ा यहाँ पे फैन बेस है. तो मैंने कहा कि दो नाम जो मतलब साथ में एको करते हैं विलेजेस में भी लोगों को पता होंगे वो गांधी जी और माइकल जैक्सन. चाहे दुनिया पलट जाए गवर्नमेंट चेंज हो जाए लेकिन ये दो नाम कभी नहीं बदलते. सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट आइकॉनिक दैट वी स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम. या आगे पता चलेगा. इट्स टू अर्ली. इट विल बी अनफेयर फॉर मी. I don't know. I think I'll do acrobats. नहीं. I'm not performing. I've been shooting all this year, working on my films. फुकरे की shoot अभी ख़त्म हुई है, so I'm very excited. This year is gonna be quite different for me. And thank you for the support. फुकरे वन में जैसे आप गिटार बजाते हो नजर आते हैं इसमें बिल्कुल नहीं है. इसमें मेरा मैं त्याग दिया गिटार में. I'm done with all guitar. I think फुकरे part 2 is from start to finish. Part 1 में क्या था कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे कैरेक्टर्स. दिस वन यू विल सी the whole stakes are already up and it's full on action यार. It's quite crazy. I shouldn't even be saying that but इसके अलावा जो है फिल्म तो आपने बता दी लेकिन इस साल जो है बहुत सारे लोगों को नेशनल अवार्ड मिला. जैसे अक्षय कुमार की बात करें, सोनम कपूर जी की बात करें, yeah नीरजा के लिए भी मिला. तो क्या कहना चाहेंगे मतलब totally deserved यार. Congratulations to Sonam. I think she has come a long way. You know, I have in fact I really enjoyed Neerja. I really enjoyed her performance. Very simple, very subtle. And you know, you usually see Sonam doing very glamorous stuff, you know, and she's also like the fashionista of Bollywood. So, and I mean, my heart out to Sonam, but you wouldn't expect to see her in such a, you know, interesting role. So that's awesome. That's great. Akshay Kumar तो मतलब he's जैसे कि आप सेलिब्रिटीज होते हैं जो एंडोर्स करते हैं सभी ब्रांड्स को, लेकिन हाल ही में इस तरह की डिबेट चल रही है कि फेयरनेस क्रीम जो होती है गोरेपन की 15 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, इस तरह का आपको लगता है इस तरह के सेलिब्रिटीज को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. हमारी वो तो that's a bit of a
it's a conditioning जो हमारे देश में already ingrained है बहुत time पहले से. वो complexes हैं, वो I don't know, we can't help it. But it's not, you can't also sit and blame actors. At some point actors are, I mean, yes, we should be taking responsibilities. But I guess at certain times people do certain things and we can't really start trolling them and saying कि आप बुरे हैं. I think the problem is in the root. Somewhere हम लोग को वो distinguish कहीं करना पड़ेगा ना कि सफ़ेद is not, white is not pure, white is not supposed to be good, black can also be good. वो idea ही गलत है start से. So yeah, I think yeah. All right, thank you. रिचा स्ट्रेट राइट फुल राइट वन मोर Thank you. Bye. मैम जस्ट होल्ड हियर. मैम सामने आप एक्सक्यूज मी. अरे पडला खूप मैम शेड हियर. मैम ये लाइट आ रहा है यार. काय ना स्टॉप है थोड़ा इस तरह ये सब आ मैम दिस साइड मैम इस साइड. पीछे चलो पीछे चलो और पीछे चलो. जगह ना पीछे. या स्टेडियम मैम जस्ट होल्ड. मैम लुक एट राइट. पैनल के सामने एकदम. मैम स्ट्रेट. जस्ट होल्ड लास्ट ऑफ स्ट्रेट. ये मैम या रमन ये लेफ्ट. राइट. मैम योर राइट साइड. या थोड़ा और इधर आइए ना. हां यहाँ पे देखिए. वेट अप. मैम यहाँ. मैम जस्ट होल्ड. मैम यहाँ पे. मैम सामने एकदम. हम लेफ्ट. होल्ड. स्ट्रेट. मैम लास्ट में. एक मिनट. पहले से आप. Thank you. Yeah. हाँ जी. Hi, how are you all? Good morning, afternoon, good afternoon. रिचा, सबसे पहले तो आईफा के वोटिंग्स चल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? 2016-17 में बहुत ही अच्छी फिल्म आई. आपकी पसंदीदा फिल्में कितनी थी? मेरी मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को कम मौका मिलता है अपना. आप लोग चुप करेंगे? हाँ, ओके, वील स्टार्ट अगेन. फिल्म इंडस्ट्री की जो फ्रेटर्निटी है उसको वोट डालने का मौका कम ही मिलता है, इसलिए मैं हर साल आईफा की वोटिंग में आती हूँ और साल दर साल फिल्मों की क्वालिटी सुधरती जा रही है, बढ़िया फिल्में बना रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है. राइट. रिचा, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड हो गए हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है बहुत सारे अवार्ड की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक वो अवार्ड्स इवेंट की तरह होते हैं, बट आई थिंक आउटसाइड इंडिया यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ होता है.
और एक ऐसी जगह होती है जहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग दे लेते हैं लूज, सब लोग साथ में मिल के बैठ के गाते हैं। मुझे ऐसे लोग कुछ मिलते हैं जो हर साल सिर्फ आईफा में ही मुझे मिल पाते हैं, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आपके लिए कितना एक्साइटिंग होने वाला है इस साल का आईफा? परफॉर्म करने वाली है कुछ? नहीं, मैं परफॉर्म वगैरह कुछ नहीं करूँगी। अब मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं कि कितना एक्साइटिंग होने वाला है, वो तो जब नॉमिनेशंस वगैरह बाहर आएंगे तो ही पता चलेगा। रिचा, इसके अलावा नेशनल अवार्ड मिला है सोनम कपूर और अक्षय कुमार को, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील कर रहे हैं? नेशनल अवार्ड्स, ये हाँ अच्छी बात है। आई थिंक सोनम के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस नीरजा में थी, तो उनको स्पेशल मेंशन मिला। और अक्षय कुमार हर साल एक ऐसा सरप्राइज़ हिट लेकर आते हैं, जैसे रुस्तम हो या बेबी हो या एयरलिफ्ट, उनका बहुत सालों से एक एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है, विच आई रियली एंजॉय। रिचा, इसके अलावा आपने सरबजीत की है, तो हाल ही में जो कुलभूषण को लेकर जो खबरें आ रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरबजीत की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी। जब भी कोई इंसान प्रिजनर ऑफ वॉर बन के रह जाता है, जबकि वो सिविलियन होता है और दो गवर्नमेंट्स की सियासत के बीच में फंस जाता है, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी उसमें वो इंसान और उसका परिवार होता है। रिचा, इसके अलावा आप बोलिए। any upcoming project you want to share with us? Not right now. Thank you so much. Anybody else has any questions? Yes, I have. हाँ। मैम, आप हमेशा वुमेन्स के लिए स्टैंड लेते हैं और आपने फैंटम मूवी के लिए काम, प्रोडक्शन के लिए भी आपने काम किया हाँ, मूवी में। हाँ। तो कंगना ने जो एलिगेशन लगाया विकास बहल पे सेक्सुअल हरासमेंट पे, तो आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? आई एम नॉट अवेयर ऑफ कंगना स्टेटमेंट। आई एम अवेयर कि एलिगेशन है और फैंटम पे नहीं है, विकास बहल पे है। हाँ, और फैंटम फिल्म में मैंने काम नहीं किया, फैंटम के प्रोडक्शन हाउस में। सो आई एम श्योर दैट द अदर 3 पार्टनर्स विल फॉलो ड्यू कोर्स और लीगल तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लिया जाएगा। एज फार एज कंगना स्टेटमेंट कंसर्न, आई एम सॉरी, वाजंट इन इंडिया, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आगे और रिचा जी, हाल ही में कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कई जो ग्रुप स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे जवानों का असॉल्ट कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं वो वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स? ये ना, ये मुद्दा आपकी समझ से तो पहली बात बाहर है, दूसरी बात ये पॉलिटिकल एरिना नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट करके आपको हेडलाइन नहीं देना चाहती। आपको कुछ जानना है तो मैं ब्लॉग लिख दूंगी। ओके, थैंक यू। रुक जाइए, सही दे विज क्राफ्ट में बोला। एक सवाल और प्लीज ऐसा कोई सवाल मत पूछना जो, आई एम रनिंग 10 minutes लेट, आई एम रनिंग। ओके, बाय। नहीं पूछो, जवाब मिलेगा वैसा जैसा सवाल होगा। हाँ। ओके, कम ऑन, कम ऑन। या फेयरनेस क्रीम के ऊपर जिस तरह से अभी चल रहा है, जो मतलब बड़े स्टार्स जो है फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं, लेकिन अभय देओल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है फेयरनेस क्रीम को लेकर, उसके ऊपर आप लोग सो रहे थे क्या जब इतने सालों से फेयरनेस क्रीम्स लोग इंडोर्स कर रहे थे? तो तब आप सो रहे थे। अभी एक स्टार ने कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाया है तो प्रेस में आप उछाल रहे हैं। आप तब पहले सो रहे थे। कितने सालों से फेयरनेस क्रीम्स इंडिया में चलती हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आगे मुझसे तो मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने नहीं पूछा। इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन यू, बट आई एम आस्किंग द प्रेस इन जनरल, व्हाई डज इट टेक समबडी एल्स टू रेज दिस इशू? व्हाई कांट इट कम फ्रॉम यू? यू आर रिस्पॉन्सिबल मीडिया ना, यू आर द 4th estate. So then when have I ever endorsed a fairness cream? Barkha ma'am always raise this question and media always raise this question. Yes, certain media always does, and certain media overlooks it and asks the question when it's already a controversy. Anyway, okay, we'll do what I came back for, which is the witchcraft fight. एक मिनट थोड़ा पीछे ना, लाइट आ रहा है। मैं क्या? ये क्या यहाँ पे?